اللہ اللہ. ہاں جی صاحب خیریت ہے؟ ہاں السلام علیکم. جی اب آپ کے میسج تشریف لا رہے تھے, میں نے کہا چیٹنگ کرنے سے بہتر ہے دو چار باتیں کر لی جائے, ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب وہ لکھنے میں اتنا وقت چلا جاتا ہے. تو کیا اس میں شریف ہے آپ کا؟ یہ ہمارا نام الطاف احمد ہے. اچھا الطاف احمد ہے. میں ساکن آگا میں رہتا ہوں. آپ کا قیام کہاں ہے؟ یہ ہمارا یہی آپ کے بغل میں. کیا بات کرو, ساکن آگا کے بغل میں؟ نہیں ساکن آگا کے بغل میں نہیں, میں دراصل یہ محبوب سبحانی مسجد ہے. ارے ہاں محبوب سبحانی سے تو ماشاء اللہ میری تعلیم ہوئی ہے. ہاں 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 جی یہ ہاں یہ ہمارے استاد رہ چکے ہیں. کون؟ مولانا عبدالرحیم صاحب. ساحل ہاں ہاں. تو ساحل ملت تو میری بھی استاد ہے. تو آپ اتنے کیسے کیا آؤٹ ہو گئے کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو چور کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیثوں میں لکھا ہے. آپ تو میں تو اس پر بحث کروں گا ہی انشاءاللہ الرحمن, ٹھیک ہے نا. سر دست میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے ایک جگہ لکھا کہ میں حق کا متلاشی ہوں, حق کو تلاش کر رہا ہوں, پھر آپ معاذ اللہ ڈھٹائی کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھے اور پارسی تھے. ہاں واقعی ہاں پارسی نسل تھے. تو پارسی ہونے سے کیا ہوگا مجھے بتاؤ نا. نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ پارسی نسل تھے. ارے پارسی نسل نہیں, وہ فارسی نسل لفظ ہے. بالکل صحیح ہے فارسی نسل, لیکن دراصل زرتشتی جو مذہب تھا ان علاقوں میں اس وقت رائج تھا, اور واقعی ان کے جو پردادا تھے وہ فارسی یعنی فارسی تھے. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ آتش پرست تھے. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آتش پرست تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بھی جو تھے نا زوتا, وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لائے, اور اس طریقے سے کئی صحابہ, حضرت سلمان فارسی بھی پہلے اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے, وہ بھی فارس کے رہنے والے. تو پھر یہ کیا پیمانہ ہوا کہ کوئی فارس کا رہنے والا ہے تو گویا اس کو ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ملے گا؟ یہ کون سا پیمانہ آپ کے نزدیک؟ نہیں یہ پیمانہ ایک بات آپ صاف واضح لفظوں میں بتائیے. دیکھو منافقت یہ اچھی چیز نہیں. مثلا میں بحمد اللہ سنی ہوں, حنفی ہوں, بریلوی ہوں, ٹھیک ہے, اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں, سمجھے, عقائد میں, اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو. تو آپ کا تعلق اس وقت کیا اہل تشیع کی طرف جھکاؤ ہے آپ کا؟ نہیں اہل تشیع کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. حق جہاں سے ملے, اور اگر ہمارے خیالات کچھ غلط ہیں اور حق, اور آپ اپنا رشتہ تلمذ جو ہے نا, آپ اپنا رشتہ تلمذ ساحل ملت کی طرف جوڑ رہے ہیں, اس کا آپ کو بالکل حق نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین کے دامن کو داغدار کریں, خصوصاً تب جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. کیا ان کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ معاذ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نہیں ایسا تو نہیں تھا. اور میرے خیال سے دیکھو, کوئی غیر مقلد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز چور نہیں کہیں گا, دیوبندی بھی نہیں کہیں گا, بریلوی بھی. تو کسی بزرگ کے تعلق سے ایسا خیال رکھتا ہی نہیں الحمدللہ. سب سے مؤدب بریلوی ہیں بزرگوں کے معاملے میں. نہیں بزرگوں کے معاملے میں ہے یہ بات درست ہے, لیکن دراصل یہ ہمارے محدث ہیں یحییٰ بن معین صاحب, انہوں نے انہیں چور کہا ہے. یحییٰ بن معین نے کون سی کتاب میں ان کو چور کہا یہ بتائیں؟ ہاں یہ ان کا قول میں آپ کو, ابو مسلمہ کا قول ہے کہ یحییٰ بن معین صاحب جو ہے, یحییٰ بن معین کس کے شاگرد تھے آپ کو معلوم ہے؟ اور کس پائے کے محدث تھے یحییٰ بن معین؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے ان کا یہ قول کس کتاب میں درج ہے؟ یہ بخاری صاحب ان کے شاگرد رہ چکے ہیں, اور ان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایک ہی استاد تھوڑی تھے. آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ کرنے کے لیے ان کے اساتذہ کی فہرست 400 کے قریب ہے, شاید اس سے بھی زیادہ. ان کے اساتذہ اور شیوخ اتنے ہیں. ہاں ایسا کتابوں میں لکھا گیا ہے. اب اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا احسان اس امت پہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مجتہد فی الحدیث ہیں, انہوں نے حدیث پر اتنا بڑا کام کیا, اور معاذ اللہ ان کو ایک دم تم چور کہو گے تو ہماری غیرت ایمانی کو جوش تو آنا لازمی بات ہے یار. نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ الفاظ یہ
ये नहीं किया है कि वो यहिया बिन मोइन साहब जो है आपकी अंगुष्ठ ने टाइप किया है, मेरे व्हाट्सएप पे आया है, बाकायदा आप लिख रहे हैं बाले माने चोर, क्या क्या लिख दिया आपने? नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो मैंने लिखा हूँ तो ये कहाँ से मैं मुतासिर होकर लिखा हूँ वो भी देखिए। तो ऐसे हवाला है। अब तो आप गैर किताब पढ़ोगे तो इमाम आजम को आप मुरजई कह दोगे, माज़ल्ला, इमाम आजम को कलीलुल हदीस कहोगे, हत्ता की यहूदी कह दोगे, गैर मुकल्लिद। अहले तशी की किताब पढ़ के आप साहबा को, हजरत उस्मान को यहूदी कह दोगे, खुलफाए राशिदीन को गासिब कह दोगे। तो वो तो हर किताब के अंदर अपने मसलक की तायद में लोग लिख ही देते हैं, मगर इनके अंदर हक और बातिल का कोई पैमाना होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग लिख देते हैं, ये भी सही, इन पे भी हमारा यकीन है। आप एक कौल की बात करते हैं कि वो याह्या बिन मोइन का कौल है। हाँ, आपको तारीख की किताबों से ऐसी हजारों बातें साबित कर सकता हूं। नहीं, याह्या बिन मोइन का कौल नहीं है ये, दरअसल कौल है अबू मुसलमा का कौल है, और ये उन्होंने कहा है कि याह्या बिन मोइन जो उनके रावी याह्या बिन मोइन है। नहीं, याह्या बिन मोइन, मेरी बात सुनिए, अबू कौल है किसी और का। हाँ, कौल है किसी और का, मैं आपको हवाला दे दूंगा। कौल है किसी और का, तो उन्होंने कहा है कि याह्या बिन मोइन साहब वो खलियान को चले गए थे, और किताब खलियान को चले गए थे, अपना बंगाल वाला कल्याण। नहीं, तो वो तो उनके लड़के को इन्होंने पैसे दिए हैं, पैसे दे करके और उनकी किताब में से नकल की है। अब बुखारी सामने। अरे यार, अब देखो, एक तो रिवायत तुम उठा कर लाए हो, और पूरी उम्मत का इजमा है कि बुखारी कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब, और उसकी तदबीब में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने 16 साल का अरसा उनको लगाया। बिल्कुल सही है, उन्होंने ये अल्फाज लिखे हुए मिल जाते हैं हमें। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, घर से मिल जाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन पर आप आमन्ना व सद्दकना कह के उनसे बज़न हो जाए आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये अल्फाज हमें मिल जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ये भी कहा है। अभी मैं पढ़ रहा था हाफिज नेसापुरी, अभी मैं मौलाना ये वहीदुज़्ज़मा साहब की किताब पढ़ रहा था, मुस्लिम शरीफ का उन्होंने शरह लिखी है, और सुन्नियों में भी मशहूर शरह पाकिस्तान के एक आलिम थे, गुलाम रसूल सईदी साहब, उन्होंने भी सियासत की किताबों का शरह लिखी है। तो उनकी किताब में मैं हवाला दे दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम शरीफ को बहुत लोग ये कहते थे कि ये बुखारी से सही है, और इस जमीन पे सबसे सही किताब यही है। तो उसका क्या करेंगे आप? नहीं, तो मैं क्या बहुत से लोग बहुत सी बातें की बिना पर, एक मिनट, मुस्लिम शरीफ की बात नहीं, ये गलत है। सही बुखारी बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे उसे हमने तो दोनों मुहद्दिसीन को चोर कहा, जिन पर पूरी उम्मत पर जिनका एहसान है। बिल्कुल सही है। नहीं, मेरी बात अब तो माशाअल्लाह कहा है, बिल्कुल सही, आप उस कौल की सच्चाई पर ईमान दिला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको अलग अलग तराजू में देखा जाए। आप अभी आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो फला इब्ने फला ने कहा, किताब का नाम आपने अब तक नहीं बताया, उसके मुसन्निफ का नाम भी नहीं बताया। अच्छा, नहीं, किताब का नाम मैंने नहीं बताया, लेकिन वो भी मैं हवाले के साथ आपको बता दूंगा। तो कब बताऊंगा? हवाले के साथ। हाँ, अच्छा, आप तशरीफ लाएंगे मेरे मदरसे में कुरला? हाँ, नंबर खाली, कब तशरीफ लाएंगे? अरे मैं इतवार को इंशाअल्लाह मिलूंगा, और मैं जरूर मिलूंगा। किताबें उठा लाइए जिसमें इस किस्म की बातें लिखी हुई है, समझे? और उसकी क्या सच्चाई है, ये तमाम जो एतराजात हैं, ये मैंने सही। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, बस एक छोटी सी बात मैं बता दूं, कतई कलाम करते हुए, एक बुजुर्ग रहिमहुल्लाह के खात्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया मेरी किताब पढ़ा करो, मेरी किताब सही बुखारी है। तो जिस किताब को बारगाह रिसालत में मक़बूलियत हासिल हो, ये भी मैं पढ़ा हूँ। अब लोगों ने ये गुलू की खातिर लिख दिया मुबालगा,
तो ये सब बातें हैं। यार तुम कैसी बातें करते हो, यानी जो अकीदतमंदों ने लिखा वो गुलू है और जो हासिदीन ने लिखा वो 100% हक है, ये कोई पैमाना नहीं? तो है? मेरी बात सुनिए ना, नहीं पैमाना नहीं, जो अकीदतमंदों ने भी लिख दिया कुछ का कुछ, ये भी लिखा हुआ है मुवत्ता के बारे में। इमाम शाफी का कौल है कि अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान शरीफ के बाद वो मुवत्ता है, तो ऐसा लिख देने से हो जाएगी मुवत्ता में कितने इमाम शाफी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में से इमाम मालिक रहमहुल्लाह, समझे। और दूसरी बात है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह की वो किताब उनकी नजर में उस मेयार की थी तो उन्होंने बयान किया ना, उस मेयार की वो किताब थी उनकी नजर में, और जब तक सियाहत इतना तस्लीम नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, उनकी नजर में यानी वो किताब उन्होंने अपना कौल पेश किया, उन्होंने कौन सा कहा है कुरान हदीस बिल्कुल सही। हाँ नहीं कुरान शरीफ के बाद उन्होंने कहा असूल कुतुब उन्होंने कहा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस वक्त बुखारी थोड़ी थी यार। अरे बिल्कुल सही है, उस वक्त आपकी बातें बिल्कुल सही है, उस वक्त बुखारी नहीं थी, लेकिन बुखारी से अच्छी बातें थी। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस के लिए जो ज़ाब्ते जो उसूल तरतीब दिए हैं ना, उसका लिहाज मुवत्ता में नहीं रखा गया। बिल्कुल उस बिना पे बाद वालों ने मुताखिरीन, उस बिना पर मुताखिरीन ने कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी को करार दी। अब रही बात इमाम बुखारी मुताखिरीन को जो आपने छोड़ कहा है ना, मेरी बात सुनिए, मुताखिरीन जो पैदा हुए खैरुल कुरून के बाद पैदा हुए हैं, और बुखारी को सब उसूल ज़वाबित उन्होंने बनाए हैं। ओ मियाँ, ये जो जहाँ से चोर का लफ्ज उठा के लाए हो ना, आप खैरुल कुरून से उठाकर नहीं लाए हो। खैरुल कुरून की तो बात ही मत करो आपको तो खैरुल कुरून का इख्तिताम भी नहीं मालूम कब हुआ। खैरुल कुरून का इख्तिताम कब हुआ बताओ। सुनिए मेरी बात सुनिए, खैरुल कुरून खत्म कब हुआ ये तो बताओ आप। खैरुल कुरून की खैरुल कुरून कब खत्म हुआ? अब उसमें इख्तिलाफ है, कोई कहता है कि ये, अरे सही राय बताओ। इख्तिलाफ तो सब में यार, इख्तिलाफ तो नमाज में भी है। हाँ लेकिन कोई एक राय तो बताओ कि भाई फलां सदी में खत्म हुआ। अरे अब कोई कहता है कि 200 और कोई कहता है कि ये बुखारी भी उसमें आ जाते हैं। हाँ। तो अब क्या सही कहा जाए? तो अब लोगों ने अपना उसूल बनाया है, अपनी इमाम बुखारी ने नकल किया है इख्तिताम खैरुल कुरून हिजरी 220 है। हाँ बराबर। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खैरुल कुरून की ज़माने, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं ना मियाँ, उस बात का वो बेसर पैर की बात है, और हम अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात कतई नहीं सुन सकते। वो कोई भी हो, आप कोई भी 30 मार खा हो, समझे, और आपकी तालीम करना हरगिज मेरे लिए जरूरी नहीं है। वो तो मैंने गलती से आपका इसमें शरीफ पूछ लिया, वरना शरीफ का लफ्ज भी आपके इसम के साथ नहीं लगाना चाहिए था मुझे, क्योंकि बुजुर्गों के मामले में मैं बहुत मुतसल्लिम हूँ और पक्का हूँ। बिल्कुल सही है। या बोलिए आप कहाँ है, मैं आता हूँ। अभी आऊँ? बोलिए, मैं भी आ जाता हूँ। रात के कितने बज रहे? हाँ 12 बज गए। नहीं 12 बजे या टाइम का सवाल नहीं आ रहा भाई, रात के 12 बजे के बता रहा हूँ। हाँ हकीकत जो भी है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अरे हकीकत तुम्हारा फोन पे बोल देना हकीकत है यार, कैसी बातें कर रहे हो बेसर पैर की। आप उसको साबित करो ना, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। नहीं तो क्या साबित करो बताओ? इमाम बुखारी मुस्लिम को आप कह रहे हैं ना कि वो चोर है। हाँ तो कब साबित करोगे? खाली बोल देना। हाँ, कोई माज़अल्लाह तुम नहीं हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं दिफाए बुखारी में से मैं वो हवाला निकाल के आपको दे दूंगा। नहीं आप वो किताब मुझे दिखाएं और उसके बाद उसी पर बहस होगी आपकी मेरी, और रिकॉर्ड भी होंगी बाकायदा। नहीं बहस होगी, ये अलग मौजू है। वो मैं हवाला आपको दूंगा, जो मैंने कहा उसका हवाला मुझे देना है। मालूमात में बेहद इजाफा करने के लिए जो अहले बैत अज़हार के अइम्मा गुजरे उन पर भी जरह हुई है, अइम्मा मुज्तहिदीन पे जरह हुई है, सहाबा किराम पर भी ज़बान तान दराज करने वालों ने किया है। सबकी बातों को सही मानते बैठोगे तो मियाँ इस्लाम से हाथ धो दोगे आप। नहीं मैंने आफियत का सलामती का रास्ता अहले सुन्नत व जमात हनफी मजहब या कोई भी एक मजहब अइम्मा अरबा का, और इस जमाने में जिसकी पहचान बरेलवी मसलक से होती है उसमें आफियत है, सलामती है। बुजुर्गों का अदब कीजिए और इस किस्म की बदगुमानी से बाज आइए। मैंने ऐसे कोई गलत बात नहीं की है। मैंने जो कहा वो आपको बता दिया। हर से आखिर क्यों समझ बैठे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप। तो मैं कहाँ हर पे आके कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनपे जिरह हुई है, ईमानदार किताब पढ़ी और पढ़ने के बाद उस पर आपने एतमाद कर लिया। बिल्कुल सही है। एक आदमी अगर गिरा करता हो, एक मुहद्दिस
बिल्कुल सही है। एक मुहद्दिस अगर गिरा करता हो तो सही है, उनके ऊपर बेशुमार मुहद्दिसों ने गिरा किया है। एक ही हदीस है सुनन नसई की, इमाम मुस्लिम उसको सही कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़ईफ कहते हैं। हम दोनों की राय का एहतराम करते हैं, लेकिन आप दोनों की राय मुतजाद हो तो एहतराम करना तो ये बात है। ये जिबाले इल्म है, आसमानी इल्म के तारे हैं ये लोग। आप इनकी जात पे ऐसे कदगन लगा दो कि चोर थे और चमार थे और बाबे थे और मामे थे। ये किताबों में लिखा है, मैं जैसे पढ़ा हूँ। ऐसी किताबें जला दो जिसके अंदर बुजुर्गों की इहानत और तौहीन मौजूद, और खुसूसन ऐसे मुहद्दिस जलील क़द्र मुहद्दिसीन के ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप सामने आइए, मुझसे बात कीजिए।